Class 11 Subject Chemistry Chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. Today content Concept of hybridization, rule of hybridizations, type of hybridization, structure of different hybridized molecule. Also study the valence shell electron pair repulsion theory means BSEPER theory. So what is the concept of hybridization? According to valence bond theory, only those atoms can form bond which have at least one orbital with unpaired electron in their valence shell. Valency of an atom, number of bond formed by an atom is equal to the number of unpaired electron present in the atomic orbitals. The electronic configuration of the elements given on there. Therefore, we can say that how much unpaired electron and how much unpaired valence orbital found in a particular atoms are known as their valency. It is thus clear that valency of beryllium, boron, carbon 234 unpaired electron boron are in different energy orbital, hence the bond formed by them should also of different energies, but is not so. Similarly, the four bond formed by carbon atom also with different but four carbon hydrogen bond in methane are similar. To explain these facts, the specific geometry of polyatomic molecules, Pauling suggested that orbital have the tendency to form new or energy orbital of same energy level by mutual combination. This phenomena is called hybridization. On the basis of hybridization, bond formed by elements such as carbon may be explained. The new orbital formed as a result of hybridizations are called hybrid orbital. Hence, the process of mixing of atomic orbital of nearly the same energy and different shape to form equal number of new orbital of same energy and shape is called hybridization. Means पॉलिंग के अकॉर्ड एक ऐसा फिनोमिना जिसमें दो या दो से अधिक सेम एनर्जी और डिफरेंट शेप वाले एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद हाइब्रिडाइज आइटम ऑर्बिटल्स बनाते हैं. सम पर्टिकुलर रूल्स आर गिवन बाय IUPAC. The rules are of hybridization as given. First, orbitals participating in hybridization should be of almost same energy level. First means हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम होनी चाहिए. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन इट. कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है मीन्स जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. Orbital, not the electron, participate in hybridizations. Therefore, orbital that participate in hybridizations can be half-filled, completely filled or vacant. Excitation of electron is not necessary for hybridizations. एक्साइटेशन जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रॉन की हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म करने में. हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिमिलर इन एनर्जी एंड शेप बट हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन शेप. Orientation provide minimum repulsion between orbital. On the basis of hybridization, geometry of a molecules can be determined. It is due to definite orientation of hybrid orbital in the space. Hybridization depend upon chemical atmosphere C2H6, C2H4, C2H2, etc. Each carbon atom is related respectively 1, 2, 3 hydrogen atoms. Therefore, all the three have sp2, sp3 and sp hybridization respectively. To specify the type of hybridization, the number of orbitals that are participating in written in superscript of name of orbital. For example, meaning of sp2 is that one s orbital and two p orbital are taking part in it. Redistribution redistribution of energy and charges take place in hybridization. The bond formed by hybrid orbital are comparatively strong. हमने ये जाना कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होने वाले सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए. पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्बिटल्स
का नंबर इक्वल होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट किया जाता है, ऑर्बिटल को एक्साइट नहीं किया जाता है। इस तरह से कंडीशन के बेस पर हमने डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस को जाने। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सम important type of hybridization are described below. sp hybridization, linear or diagonal hybridization, when one s orbital and one p orbital combine to form two linear sp hybrid orbital of equal energies which are inclined to each other at the angle of 180 degree, then it is called लाइनियर और sp हाइब्रिडेशन। आपने देखा है यहाँ एक s ऑर्बिटल है जिसकी एक्सिस यहाँ पर शो की गई है, दूसरी तरफ आपके पास p ऑर्बिटल है। s और p आपस में एक दूसरे में सबमर्ज होंगे और सबमर्ज होने के बाद 180 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, मीन्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। एग्जाम्पल, सपोज हम बेरिलियम क्लोराइड को देखते हैं, तो बेरिलियम को कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 1s2 2s1 एंड 2px1। इधर क्लोरीन ns2 np5। यहाँ पर हमने ये देखा कि s से एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल क्लोरीन के दो ऑर्बिटल p और p से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो आपने कहा लाइनर इक्वेशंस बनेगा। आफ्टर दैट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। डियर स्टूडेंट, कुछ चीज़ें लर्न करिएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज द डायगोनल और लाइनर हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज एंगल इज 180 डिग्री। सेकंड इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन के नाम पर जानते हैं। इसमें एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, मीन्स एक s और दो sp ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिससे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा और इन तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो 120 का होगा। यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर लेते हैं C2H4 ले सकते हैं। इसकी जगह पर बेरिलियम ट्राइक्लोराइड ले सकते हैं और एंगल जो हमें यहाँ पर फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, एंगल जो यहाँ पर फॉर्म होगा वो 120 का होगा। ये मेंशन हो रहा है 120, तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो 120 का ही होगा। After that, we are going to study the third type of hybridization, means sp3 hybridization. sp3 hybridization में एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे। इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने पर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं, लेकिन रिपल्सन होने के कारण ये जो एंगल फॉर्म होता है 109 डिग्री और 28 with one another is space. These four orbitals are directed toward a regular tetrahedral. As in this state, repulsion between them become minimum. Molecules containing such sp3 hybridization center atom of the tetrahedral shape. Here the center atom is carbon. This hybridization is also called tetrahedral hybridization. इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मेथेन का। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम और 1s एंड 3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, सो फॉर्म द CH4। इसका शेप कितना होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए और एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 पॉइंट। लेकिन अभी हम जानेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के थ्रू कि ये एंगल कैसे हाई और लो हो जाता है और किस तरह इसका शेप डिसरप्टेड हो जाता है। तो हमने जाना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए शेप कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए और टेट्राहेड्रल होने पर एंगल कितना होना चाहिए 109.228 डिग्री होना चाहिए। आफ्टर दैट dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पार्टिसिपेट करने में एक s एक d और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये आपस में कंबाइन होंगे और dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चेंज हो जाएंगे, इसलिए हम इसे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें जो हमें शेप मिलता है वो स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री में देखने को मिलता है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उन दोनों के इन सभी के बीच में वो मैक्सिमम होती है, इसलिए रिपल्सन इसमें मैक्सिमम होता है। द बॉन्ड एंगल इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 90 एंड 180। मीन्स इसमें ये कहा जाए कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक d और एक s और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं।
जो जियोमेट्री हमें मिलती है, जियोमेट्री वो स्क्वायर प्लेनर पर मिलती है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 या 180 डिग्री का होता है। आफ्टर दैट sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में एक s, 3 p और एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। इस तरह से इसमें 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। टू मेंटेन अ स्टेबल स्टेट दे रिमेन्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। फॉर दिस 3 ऑर्बिटल remain a plane are directed toward the corner of equivalent triangle having their angle is 120 degree, while the other two are oriented at right angle to the plane of triangle above the below. Thus a trigonal bipyramidal shape is obtained. Trigonal bipyramid, याद रखिएगा ट्राइगोनल में जो एंगल होगा वो 120 होगा, बाइपिरामिड का एंगल चेंज हो जाएगा। Hence molecules that show this type of hybridization are trigonal bipyramidal shape. This shape is unsymmetrical, hence it is unstable. It can be understood by the structure of phosphorus pentachloride PCl5. PCl5 में हम देखेंगे प्राइमरी स्टेज में NH2, NP3 और ND0 देखने को मिलेगा। जब ये एक्साइटेड होगा वैसे इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में पहुंचेगा और हमें कंडीशन मिलेगी sp3d। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम फास्फोरस का देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, 3d0। ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें p ऑर्बिटल में देखने को मिलते हैं। जब हम इसे एक्साइटेड करते हैं 3s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर 3d में पहुंचता है और तब जा कर के s में सिंगल, p में 3 और d में एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, और हमें इनके बीच में हम क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है उनका बॉन्ड एंगल 120, और जो बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बाइपिरामिड बनता है उनका एंगल 90 डिग्री होता है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि 3 ऑफ 120 डिग्री p एंड Cl बॉन्ड बनाते हैं वन प्लेन पर, इसे इक्वेटोरियल माना जाता है। और जो दो बॉन्ड बनते हैं फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में वो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म में वो शो होते हैं, और शेप जो बनता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बेसिक कंडीशन देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखें 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 3p6। इसके बाद आपने देखा कि ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेज में फिर हम इसे क्या करते हैं, जो 3s का इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होता है और 3p पे पहुँचता है, और इस तरह से एक s का 2p के और 1s, 3p एंड 2d। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2। एंगल कैसा होगा, तो आपने जाना कि एंगल होगा एंगल होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल जो होंगे वो सिंगल प्लेन पर होंगे, बाइपिरामिड जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। एंगल जो होगा ट्राइगोनल का 120, अब बाइपिरामिड 90 डिग्री पर अरेंज होंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s, 3p और 2d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये जाना कि इसमें एक s, 3p और 2d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमें देखने को मिलते हैं। इसमें ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिला हमें, जिनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होने से रिपल्सन मिनिमम हो जाता है। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। मॉलिक्यूल्स दैट शो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल SF6 सल्फर 1s2। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0। एक्साइटेड स्टेज में जब लाएंगे इसे तो एक s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर 3d में जाएगा, और दूसरा 3p का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। इस तरह से अब हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, 6। इसमें 3s1, 3p3 और 3d2 देखने को मिला। जब हम ये कंडीशन देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर कैसा मिलता है, हमें ऑक्टाहेड्रल शेप मॉलिक्यूल्स का देखने को मिलता है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो 6 ऑर्बिटल होते हैं, 1s, 3p और 2d का। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द sp3d3 7 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल बिलोंग टू s, 3 ऑर्बिटल बिलोंग टू p एंड 3 ऑर्बिटल बिलोंग टू d ऑर्बिटल। 1s,
3p 3d orbital participate in this type of hybridizations and form 7 sp3d hybrid orbital. Among these, 5 orbitals are directed toward 5 corners of a regular pentagon, and rest of 2 orbitals are situated perpendicular to this plane. Therefore, angle between these 5 orbitals is 72 degree and 2 hybrid orbitals are inclined at 90 degree. ध्यान रखिएगा, पेंटागोनल बाईपिरामिड स्ट्रक्चर बनेगा, उस पेंटागोनल का जो एंगल होगा वो 72 डिग्री होगा और जो बाईपिरामिड बनेंगे उनका एंगल 90 डिग्री होगा. Molecule containing such type of hybrid center atom is pentagonal bipyramid in shape. This type of hybridization can be understood in IF7 iodine heptafluoride. In initial state इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम इसका देखते हैं तो 5s2 5p2 5p 5p5 होता है और 5d0 होता है. जब हम इसे एक्साइटेड स्टेज में लाते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँचते हैं, 5d पर पहुँचते हैं और इस तरह से 5s का सिंगल 5x 5px 5py और 5pz इनके 3 अनपेयर्ड और 3 ऑर्बिटल d के अनपेयर्ड हमें देखने को मिलते हैं और तब जाकर पार्टिसिपेट करते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, which result in the formation of sp3 hybrid orbitals containing 7 unpaired electrons. These 7 orbitals combine with 7 fluorine atoms to form pentagonal bipyramid structure IF7. यदि हम इसे ग्राउंड स्टेज पर इसके स्टडी करें तो आयोडीन 5s2 5p5 5d0. जब हम इसे एक्साइटेड स्टेज पर ले जाते हैं तो 5s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 5d में, 5px 5py के 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं 5d में और इस तरह से हमें 7 ऑर्बिटल में मिलते हैं. या जब भी ये सेंट्रल एटम किसी से हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करेगा तो पेंटागोनल बाईपिरामिड शेप दिखेगा. जो पेंटागोनल होंगे वो एक ही प्लेन पर होंगे, एंगल उनका 72 डिग्री होगा, जबकि जो बाईपिरामिड स्ट्रक्चर होगा वो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पर सिचुएटेड होंगे और इस तरह से हमें 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर देखने को मिलेंगे. सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी हाइब्रिडाइजेशन को केस स्टडी करी, जाना कि यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप लाइनियर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ट्राइगोनल, sp3 टेट्रागोनल, sp3d2 ट्राइगोनल बाईपिरामिड, sp3d3 पेंटागोनल बाईपिरामिड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला. इस तरह से ये एक रेगुलर बॉन्डिंग थी, इनकी बॉन्ड लेंथ फिक्स थी. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द स्पेशल थ्योरी ऑफ VSEPR theory. VSEPR theory means valence shell electron pair repulsion theory. Covalent bonds are directional, hence shape of an covalent bond is decided by the direction of bond present in it. Shape of hybridized molecules is decided by the state of hybridization of center atoms. Linear geometry is found in sp hybridization, planar trigonal sp2 hybridization, regular tetrahedral sp3 hybridizations. There are regular shapes which are produced in hybrid orbital to attain stability of minimum repulsion force. It has been observed that structure of many covalent molecules cannot be explained only on the basis of hybridization. Sidgwick and Powell in 1940 proposed the valence shell electron pair repulsion theory. Mention here, हमने ये जाना कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म करवाते हैं तब हमें एक निश्चित सीक्वेंस या निश्चित ज्योमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन जब हमने कुछ कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की स्टडी की तब उनके शेप को केवल हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज कॉन्सेप्ट के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. तब सिजविक और पॉवेल ने 1940 में एक थ्योरी प्रपोज करी जिसका नाम हुआ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. यह थ्योरी एक्सप्लेन करती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के शेप को. इट वाज फर्दर और बाद में इस थ्योरी को जिलेस्पी और नाइहोम्स के द्वारा 1957 में फिर से इसे एडवांस किया गया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, shape of a polyatomic molecule depend upon the arrangement of covalent bond formed by the center atom, and this arrangement depend upon the shape and size of electron pair and orbital of valence shell. According to this theory, electron pair tend to keep apart from one another as far as possible so that they may experience minimum repulsion interaction.
मेसे थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि शेप किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह अरेंज हुए हैं और किस तरह फॉर्म हुए हैं उस सेंटर एटम के साथ। इस तरह से सेंटर एटम से जो भी ऑर्बिटल बॉन्डेड हुए हैं वो उनका अरेंजमेंट उनके शेप, साइज और इलेक्ट्रॉन के पेयर और ऑर्बिटल ऑफ बैलेंस सेल, इन चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पेयर पर और बैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका शेप कैसा है। दिस थ्योरी based on the following point. First, if center atom of any molecules is surrounded only by bonded electron pair, then shape of the molecules is symmetrical and depend on the number of bonded electron pair. If two valence electron pair are arranged around the center atom of any molecules, then they should be arranged in a straight line. Since in this way they will be at maximum distance from one another. Similarly, if three valence electron pair are present around the center atom, three bonds should be an angle is 120. But when the इसने ये कहा कि जब हम सेंटर एटम सिर्फ हाइब्रिड या ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में उनके पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर यदि सेंटर एटम के चारों तरफ प्रेजेंट हैं तब उसका शेप रेगुलर होगा। फाइन, लेकिन कब? Hybrid orbital of center atom of molecules possess a lone pair of electron along with the bond pair of electron. The regular shape of molecules get disformed. This is because there is a difference in the repulsion due to bond pair of electron and lone pair of electron. Lone pair of electron exhibit greater repulsion on comparison to the bond pair of electron. Force of repulsion among various electron pair is found in the following order: lone pair maximum, लोन पेयर मिनिमम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। मीन्स कहा जाए, ये क्या कहा जाए कि जब सेंटर एटम हाइब्रिडाइज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के अलावा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम में उपलब्ध ऐसा लोन पेयर जो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जब वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है तो उसके द्वारा रिपल्सन ज़्यादा किया जाता है और रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण उसका शेप डिसफॉर्म हो जाता है। मीन्स हम दो कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। जब कोई दो या दो से अधिक एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उनकी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने से वो मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग के कारण वो एक निश्चित जियोमेट्रिक शेप को पाते हैं। कब? जब सेंटर एटम और पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं और वो बॉन्ड पेयर मीन्स वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन दोनों एटम्स के सेंटर पर होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर के अलावा उनके पास यदि कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होता है तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को मैक्सिमम रिपल्स करता है और रिपल्स कारण उसका शेप डिसफॉर्म्ड हो जाता है। एग्जाम्पल अमोनिया। Ammonia nitrogen is hybridized in sp3 hybridization. Assume that the center nitrogen atom is ammonia molecules. Its 4 sp3 hybridized orbital मीन्स अमोनिया में sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिला, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड होना चाहिए 190 एंड 228 डिग्री होना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन में जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को मैक्सिमम रिपल्स करता है और रिपल्स होने के कारण इसका बॉन्ड जो होता है डिसफॉर्म्ड होकर 107 डिग्री तक आ जाता है। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। वाटर में जो ऑक्सीजन होता है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होने के कारण यह बॉन्डेड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल्स करता है। तो जो एंगल 109.228 डिग्री होना चाहिए वो कम होकर 104 × 5 डिग्री हो जाता है और रेगुलर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री डिसफॉर्म्ड हो जाती है और वी शेप में वो चेंज हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप हुआ होता है उनमें यदि सेंटर एटम के पास या पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल या एटम के पास यदि लोन पेयर उपलब्ध होता है तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनने पर ग्रो हुए हैं उनको रिपल्स करता है और रिपल्स होने के कारण उनके मॉलिक्यूल्स में हमें चेंज देखने को मिलता है और उनका स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिसफॉर्म्ड हो जाता है। इस तरह से जिलेस्पी, नाइहोम, पॉलिंग और स्लेटर ने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के द्वारा यह
प्रूव किया या एक्सप्लेन किया कि किस तरह से रेगुलर की जगह इरेगुलर मॉलिक्यूल की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी the resonance. Another term, resonance. Structure of a molecule is decided by chemical bonding. This structure explains all the properties of a compound. When the molecular structure of a compound is unable to explain all of its properties, then its other structure are assumed. If none of these structure can exactly describe all the properties of compound, then the structure explaining all of its properties is called a resonance hybrid. This phenomena of the compound is called resonance. The imaginary structure of molecules of a compound are called canonical structure. Means यदि किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जो कि केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा डिसाइड होता है, यदि वो स्ट्रक्चर उस कंपाउंड के सभी पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब हम एक से अधिक उसके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं. एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर ड्रा करने पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कॉलोनिकल स्ट्रक्चर और वह कैरेक्टर रेजोनेंस कहलाता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि कार्बोनेट आयंस, means all this bond length is between, means all the three structures so above unable to describe. So read the example on here. मीन्स अपन ये कह सकते हैं यदि एक स्ट्रक्चर्स के द्वारा उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तब हम एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं. बनने वाले स्ट्रक्चर कॉलोनिकल स्ट्रक्चर और ये प्रॉपर्टी रेजोनेंस कहलाती है. सो एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, nitrates ion, etc. Characteristic of resonance. Some important characteristics of resonance are given as follow. Actual structure of a molecule which is called a resonance hybrid is unknown, but in fact it has its existence. Means ऐसा स्ट्रक्चर जो उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करता है, उसी फॉर्म में वो मॉलिक्यूल्स होता है लेकिन वो प्रदर्शित नहीं होता, तब हम रेजोनेंस हाइब्रिड प्रिपेयर करते हैं. It is not possible to exhibit the actual structure of a resonance hybrid of a molecules. Colonical form of molecules are imaginary. Means जो भी colonical structure हम बनाते हैं जिसके द्वारा उस molecules की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को या कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, वो केवल इमेजिनरी होता है. द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर इन डिफरेंट कॉलोनिकल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. हम इलेक्ट्रॉनों के पेयर को अलग अलग तरह से इस्टेब्लिश करके उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं. ऑल द कॉलोनिकल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी. अ मॉलिक्यूल अटेन स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, और हम उस रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के स्टडी कर रहे होते हैं. जैसे कि यहाँ पर कार्बोनेट आयंस में हमने पहला निगेटिव एक्स और वाई पर, सेकंड एक्स और जेड पर, थर्ड वाई और जेड पर हमने मेंशन किया, और इसके द्वारा हमने इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया हुआ है. मीन्स इट इज़ द colonical structure and form the resonance hybrid. After that we are going to study the molecular orbital theory. Valence bond theory present very easy postulate for the covalent bond formation. Even then, this theory is unable to explain some fact such that H2 plus N is formed by the combination of H and H plus, while there is no unpaired electron in H plus. How is a coordinate bond formed? In the formation of oxygen molecules, the unpaired electron of both oxygen atoms form electron pair. Thus, electron molecules should be diamagnetic with no unpaired electron, but it exhibits paramagnetism equal to 2 unpaired electron. मीन्स जब हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी तब हमें कुछ कंडीशन देखने को मिली कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयंस दोनों कंबाइन होते हैं तो वो H2 प्लस क्यों नहीं बनाता. फिर हमने देखा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कैसे फॉर्म किया जाएगा. इन सभी ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा. टू एक्सप्लेन द अबव फैक्ट, इन सभी फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हुंड और मिल्किंस 1932 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज की.
According to this theory, means according to Hund or Milkans, to form a molecules from atoms, the atomic orbital of atoms combine together to form molecular orbital. This combination of atomic orbital is called linear combination of atomic orbital. Linear L, C combination, A atomic, O orbital means LCAO. Linear combination of atomic orbital in wave mechanism. Atomic orbital are represented by wave function. The wave function of atomic orbital combined together by addition or subtracting to give molecular orbital wave function. This is called linear combination. Combination of p orbital, coaxial combination, main condition for molecular orbital for atomic orbital. The energy of combining atoms orbitals should be almost equal in homonuclear diatomic molecules. 1s atomic orbital will combine with 1s atomic orbital only. Means combine होने वाले ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए. जिस तरह 1s है तो वो 1s से ही रिएक्शन करेगा. देयर शुड बी द मैक्सिमम ओवरलैपिंग बिटवीन द combining atom orbital. Greater the overlapping, more will be energy release resulting into the greater stability. यदि ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, यदि वो एक्सिस में फ्यूज होंगे तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होने से एनर्जी सिस्टम से निकलकर बाहर होगी, सिस्टम पर एनर्जी कम होगी और लो एनर्जी पर वो बॉन्ड स्टेबल होगा. It is necessary that combining atoms orbital are symmetric along intranuclear axis. जो एक्सिस होगी उस एक्सिस पर इन सभी की क्या होनी चाहिए, जो एक्सिस बनेगा उस एक्सिस पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इनका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए एक दूसरे से. After that, main postulate of molecular orbital theory. First, atomic orbital of the bonding atoms combine to form molecular orbital. Only molecular orbitals formed by atomic orbital of valence shell take part in bond formation. The number of molecular orbitals obtained is equal to the number of atomic orbitals. After the formation of molecular orbital, the electron of the bonding atom are distributed in molecular orbitals. All the general laws of Pauli, Hundel rules, Pauli exclusive principle are obeyed during electron distributions. The bond order of diatomic molecules is determined by the following formula: number of bonding electron minus number of anti-bonding electron by 2. Higher the bond order, lower is the bond length, and higher is the bond length means यदि बॉन्ड ऑर्डर हाई है तो बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो कम होगी और बॉन्ड का ऑर्डर हाई होगा. द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स आर आयन इज इक्वल. So dear student, symbols and energy order of molecular orbital. The molecular orbital formed by the s atomic orbital are represented by symbol sigma ns bonding, sigma star ns anti-bonding. N is the principal quantum number. Molecular orbital formed by p atomic orbital represented by sigma px, py and pz, star px, py, pz. Non-bonding molecular orbital formed by the atomic orbital are denoted by the original symbol KLMN 1, 2, 3, 4, 5. So dear student, on the basis of molecular orbital theory, we describe the structure, geometry and stability of molecules by MOT, molecular orbital theory. Thank you. Have a nice day.